Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to talk about dimensional formula and dimensional analysis, which is an important part of CBSE 11th physics. So without any delay, let's start with the lecture. So let's first talk about the dimensions, that what dimensions are all about. We are going to first discuss about dimensions, that what dimensions are. Now, when it comes to the physical quantities, we have different formulas, different relations, different aspects for determining the quantity. But if we have to bring all those quantities in terms of the fundamental units. Now, what are the fundamental units? If you go to the primitive systems as well as the current SI system, so the basic three fundamental quantities which are used are MLT. Yes or no? It is MLT, that is mass, length and time. There are in SI we are having other quantities also, but if we go to the FPS system, MKS system or any system, we are having these three fundamental quantities. What are these? These are mass, length and time. So when we are expressing the physical quantities in terms of these fundamental quantities, then it is termed as dimension. So dimension is what? Dimension is the mechanism, it is the process, or you can say it is the notation in which we are converting a particular physical quantity or a physical relation in terms of these fundamental basic quantities. Suppose, let me give you an example for this. Let's take a example. We are having velocity. Let's say we are having velocity. So you all know, you have gone through in your previous classes, that is in 9th class also, that velocity is what? Velocity is displacement upon time. Let's write it. I hope you people are having stationery with you, that is copy and pen with you, and you are writing along with me, making important footnotes, whatever you are having. Displacement and time. Okay. So velocity is what? Velocity is the ratio of displacement upon time. Now if you see, displacement is what? It could be in terms of kilometer, it could be in terms of meter, it could be in terms of centimeter. Means units are varying. Yes or no? Units are varying. Sometimes we call it kilometer, sometimes we are expressing it in terms of meter, sometimes we are expressing it in terms of centimeter. Units are changing, but if fundamentally we look at, displacement is what? It is length. Yes or no? Fundamentally, on the fundamental basis is, displacement is what? Displacement is the length which we are measuring. So we can express this displacement in terms of length. Okay. Now base quantity, that is denominator. Time we are having, we can have the units for the time also, like second is there, hour is there, minutes are there. We can have a lot of quantities according to them, microseconds, etc, etc. But generally, if we talk it on the general basis, on the very fundamental basis, we can express this time in the factor of time. So if I have a notation like this, that if I write this displacement as L, okay, because it is a length, it is a sort of length. Fundamentally we are saying that displacement is length, so we are writing it length, divided by time. So fundamentally it will be time also, so it is L by T. Now if we are trying to bring the numerator to the upward, what will happen? Its power will get changed and it will be LT minus 1. It will be LT minus 1. Now this LT minus 1 is what? This is the dimension. This is the dimension. This is expressing the dimension, that velocity will have some part of the length and some part of the time. This is what we are getting, what information dimensions are conveying to us, that velocity will have something which is associated with the length and something which is associated with the time. Now units are not specified. Unit could be any, it could be meter, it could be kilometer, it could be any. For time, same with the time also, it could be second, it could be hour, it could be minute. But fundamentally we are getting that on the fundamental basis, on the basically if we talk about a velocity, we must have a length and we must have a time. So if the same thing is expressed in terms of a square bracket, if we write the same thing in a square bracket, it becomes dimensional formula. Means L and T are what? Let's see. L and T are what? These are the dimensions which are expressing the quantity which is named as velocity.
and if we write it in the terms of square bracket, this is what? This is known as dimensional formula. We can write the dimensional formula for the various physical quantities. Later on, a chart, a PDF chart of the same various physical quantities will be provided to you, which will be very important for your 11th academics as well as for your IIT or NEET examination. Okay, so here we are getting this. Now we know that we have three fundamental quantities, but here we are having two fundamental quantities. We can express velocity in terms of two fundamental quantities only, L and T. What about mass? Since velocity is not related with mass, so we can write it as m to the power 0, because if anything is having power 0, you know it will become 1. So m to the power 0, and let's write for Lt minus 1. This is what for the velocity is. So dimensionally we can express velocity as m to the power 0, L to the power 1, T to the power minus 1. So mLt minus m to the power 0 means इसको आप बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, you can call it or not, इसको आप कहो ना कहो ये 1 हो जाएगा, ठीक है. So dimensionally velocity is what? It is Lt minus 1. तो आपको यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली कि वेलोसिटी में एक कंपोनेंट आपका लेंथ का होगा और एक कंपोनेंट आपका टाइम का होगा, मतलब टाइम पर भी डिपेंडेंट है और लेंथ पर भी डिपेंडेंट है. दिस इज व्हाट द डायमेंशंस आर ऑल अबाउट. डायमेंशन आपको क्लियर हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ. If you want the notes will be you can ask for the notes through the comment section, and later on we will try to upload it in the description box also. Okay, so this is the dimension and dimensional formula. Dimension and dimensional formula. Is it clear? Okay, now let's talk about the dimensional equation. If we can express a physical relation, if we can express a physical quantity in terms of dimension, can we express any equation in terms of dimensional quantity? Yes, we can. हम अगर एक एक्सप्रेशन को, हम एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं डायमेंशन के बेसिस पर, डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पे, तो क्या हम किसी फिजिकल इक्वेशन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन एक्सप्रेस. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट आल्सो. क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशनल इक्वेशन. ओके, डायमेंशनल इक्वेशन. नाउ सी, जनरली जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है? Generally when we are writing equation, what happens? We write v equals to u plus at. सबसे बेसिक इक्वेशन ले लेते हैं, ये न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, इसको सबसे बेसिकली ले लेते हैं, v equals to u plus at. ठीक, ये इक्वेशन आपने ले ली. अब इस इक्वेशन को आप देखिए तो यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है. आप इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, बट फाइनल बोलिए, इनिशियल बोलिए, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है ना. वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लेंथ का फैक्टर होगा, कुछ ना कुछ टाइम का फैक्टर होगा, दोनों में ही, फाइनल में भी इनिशियल में भी. सो हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं? वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट एज अ वेलोसिटी. फाइनल इनिशियल नहीं, वेलोसिटी मान के चल रहा है. ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है. ये एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम है. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम है, और टाइम तो टाइम है. ये इक्वेशन क्योंकि जनरल फॉर्म में जो लिखी हुई है, ये आपकी कहलाती है फिजिकल इक्वेशन. ये एक फिजिकल इक्वेशन है या फिजिकल रिलेशन है या न्यूटन की इक्वेशन, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं. लेकिन अगर इसी को हम MLT के टर्म में लिखने लगे, जो अभी हम लोगों ने किया था, वो आपका क्या हो जाता है? दैट बिकम्स अ डायमेंशनल इक्वेशन. कैसे लिखेंगे देखते हैं. अभी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने कंप्यूट किया, क्या था? इट वाज Lt minus 1. लिख देते हैं, ठीक है, Lt minus 1. अभी मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, तो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी. सो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा? इट विल बी Lt minus 1 प्लस एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? देखिए, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी का अभी हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? Lt minus 1 अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा? t. अब ये t, अब अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेकर जाते तो कितना हो जाएगा? इट विल बी Lt minus 1, और ये एक और गया तो -1 मिलकर क्या हो जाएगा? इट विल बी -2, यानी कि इट विल बी Lt minus 2. तो यहाँ पर हम क्या लिख दें? वी कैन राइट इट एज Lt minus 2. ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन का. आगे क्या है? टाइम है, तो टाइम के लिए हम क्या लिख देंगे? वी कैन राइट इट एज t. ओके, नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस इज व्हाट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग v equals to u plus at in terms of dimensions. अगर इसको हम और थोड़ा फिल्टर करके लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम इसको लिख सकते हैं m to the power 0, क्योंकि मास का कोई टर्म नहीं इन्वॉल्व है. इट विल बी Lt minus 1 इक्वल्स टू, यहां पर भी मास का कोई टर्म नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं m to the power 0 Lt minus 1, और यहां पर भी
मास का कोई टर्म नहीं तो वी कैन राइट इट एज m0l और t-2 और ये आपका t कितना है 1 है तो माइनस प्लस माइनस एंड साइन विल बी द ग्रेटर नंबर तो कितना हो जाएगा इट विल बी t-1। ठीक है, यानी कि अब आप देखो यहाँ पे आप देखो इसे तो ये क्या बन रहा है, ये पूरी इक्वेशन आपकी किस में आ रही है MLT यानी फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज के टर्म में आ गई। तो ऐसी इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, सच काइंड ऑफ इक्वेशन where the equation is expressed in terms of fundamental quantities of mass, length and time. Such equation is represented in terms of the dimensional formula of the individual physical quantities and this is known as dimensional equation. इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम dimensional equation कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पर एक चीज और पढ़ने वाली है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आई एम नॉट मूविंग टू फास्ट, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आप लोगों से एक बार डिस्कस कर चुका हूं, बट देयर वाज नेटवर्क फ्लक्चुएशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक अगेन। तो ये बेसिक सी चीज है, ये आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी की बात कर लेते हैं, काफी गर्मी है यहाँ पर। तो होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या होती है, देखिए होमोजीनियस क्वांटिटीज क्या है, होमोजीनियस क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि सेम टाइप की हैं। आप हमेशा कभी भी आप ऐड करना चाहोगे तो क्या करोगे, मास को मास के साथ ऐड करोगे ना, लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करोगे। अगर मेरे पास ये मार्कर है, इफ आई वांट टू ऐड दिस पर्टिकुलर मार्कर, तो मैं मास को मास मतलब इस मार्कर को इस मार्कर के साथ अगर ऐड कर रहा हूं तो मैं लेंथ को लेंथ के साथ कर रहा हूं ना, इसका L दोनों मिलाकर कितना 12, तो लेंथ को लेंथ के साथ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप की क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर हमारे पास कोई डायमेंशनल इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास है m⁴a l⁴b एंड t⁴c, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर कोई इक्वेशन है m x l y t z, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन इस अगर फॉर्म में है तो वो करेक्ट तभी कहलाएगी जब कंसर्न्ड होमोजेनियस क्वांटिटीज की, कंसर्न्ड होमोजेनियस क्वांटिटीज का मतलब मेरा क्या हो गया, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं मास, तो यहां पर भी मैं मास को अकाउंटेबिलिटी में लूंगा और इनकी पावर क्या हो जाए, इनकी पावर सेम हो जाए, यानी कि a आपका इक्वल हो जाए किसके, x के, a इक्वल हो जाए x के, l और l की अगर हम बात करें तो b इक्वल हो जाए किसके, y के, एंड सिमिलरली c इक्वल हो जाए किसके, z के। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो की गई है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो की गई है, यानी कि अब ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। ओके, अब हम पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को, कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, किसके बेसिस पर, डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनकी कैटेगरी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी कितनी है, बेसिकली ये 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, मैं आपको चारों बता देता हूं विद एग्जांपल। सबसे पहली आपकी होती है डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्या होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल है, आपने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, इक्वेशन होती है तो उसमें वेरिएबल्स लिए जाते हैं, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज हैं या वो वेरिएबल्स हैं जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करते हैं, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इफ देयर इज एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला, सच क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोगों ने क्या इसका एग्जांपल पढ़ा है, अभी हम लोगों ने वेलोसिटी कंप्यूट किया था, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी तो आप यही देख सकते हैं, वेलोसिटी हो गया, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा है, इसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला है, कितना होता है, इट इज LT-1 ना, यही तो हम लोगों ने कंप्यूट किया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। अभी हम लोगों ने कंप्यूट किया, तो वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसे हम कैटेगराइज करते हैं किसमें, such a quantity whose dimensional formula exists, such a quantity is known as dimensional variable, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं सेकंड में,
कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें क्या होता है, आप जैसे ये लिखते हैं ना 2x + 3y = 7, ये लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये x और y आपके वेरिएबल्स होते हैं, और ये 2, 3, 7 ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना। तो डायमेंशनल वेरिएबल की बात कर ली। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट्स हम यूज करते हैं हर इक्वेशन में ना, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद कुछ कांस्टेंट्स लेकर के आते हैं, कुछ कांस्टेंट्स हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। ये अगर उन कांस्टेंट की, जो भी कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, अगर उस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो वो आपकी कहलाती है डायमेंशनल कांस्टेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रहेगा दैट विल बी प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी जब आपको शीट मिल जाएगी जिसमें सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे होंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। आप इसको कंप्यूट भी कर सकते हैं, E = sc/λ, लैम्डा वेवलेंथ है, c एक वेलोसिटी है, E एनर्जी है। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करेंगे, E = sc/λ, फोटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो H = E λ/c हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे कंप्यूट कर सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को आप कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ना, आप यूज करते हैं ना 6.6, याद आया, ठीक है। सो प्लैंक्स कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की क्योंकि वैल्यू है, लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। ऐसा नहीं कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, इट इज हैविंग इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट भी है, एक पर्टिकुलर वैल्यू भी है, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट की। अब कुछ वेरिएबल ऐसे भी तो होंगे, या कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी तो होंगी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द नेम डायमेंशनलेस वेरिएबल। उन्हें हम किस में कैटेगराइज करते हैं, वी कॉल इट डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है। ये डायमेंशनलेस वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। इनका एग्जांपल है, एग्जांपल इज, यू कैन टेक द एग्जांपल एज एंगल। एंगल क्या है, थीटा ना। एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम क्या करते हैं, वी कैटेगराइज इट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल, बिकॉज इट डोंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब फोर्थ वाला तो आपको अपने आप माइंड काम करने लगा होगा, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, तो लास्ट क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली यू गॉट इट राइट, you got it absolutely right, it will be dimensionless, it will be dimensionless constant, it will be dimensionless constant। अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है मतलब वैल्यू होती है, वैल्यू इन टर्म्स में वैल्यू से मेरा मतलब था डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। These are the numbers which don't have the dimensional formula। The example is पाई। मैं एक ही एग्जांपल सबका ले रहा हूँ, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, लेकिन मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक ही ले रहा हूँ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पाई, तो पाई को अगर आप देखो तो पाई क्या है, 3.14, और भी उसकी वैल्यू चलती रहती है, जनरली 22/7 हम लेकर चलते हैं, ये वैल्यू है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होता, सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज where we categorize all the physical quantities based on the dimensional formula। dimensional formula के basis पे हम quantities को इन 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी हैं, they are dimensional variable, dimensional constant, dimensionless variable and dimensionless constant। क्लियर, ये बात क्लियर हुई सबको, ओके ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब तक आप जान चुके हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, और कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इसको, ठीक है। इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है, कोई भी चीज बिना पर्पस के हम लोग पढ़ते नहीं पढ़ते ना, वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पर्पस, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। सो अब इनका पर्पस क्या है, यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, उसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं, ओके। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस
ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, 3 एडवांटेज हैं और तीनों को हम वन बाय वन विद एन एग्जांपल समझते हुए चलेंगे। ठीक है, विद सैंपल एग्जांपल हम लोग इसे समझते हुए चलेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं या एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम उसको जो है विद एग्जांपल कंसीडर करते हुए चलेंगे। ओके, फर्स्ट यूज है, द वेरी फर्स्ट यूज इज dimensional formula is used to check the accuracy of a physical relation or a physical equation। कोई एक relation दिया है, expression दिया है, equation दी है, उसका correctness या उसकी accuracy को check करने के लिए हम क्या करते हैं, we use dimensional formula। So first of all you can write to check the accuracy, to check the accuracy of a physical expression। फिजिकल एक्सप्रेशन में आपकी सारी इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेशन किसी को भी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे सिंपल हम लोग यूज कर लेते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को अगर हम कंसिडर करें तो अभी हम लोगों ने इसको चेक किया था कैसे, वी जस्ट रिटन, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही किया था, इट इज एल टी माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू और t। इसको आपने सॉल्व किया था तो क्या हुआ था, इट वॉज एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। अब यहां पर ये राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। मैं सभी में अभी m की पावर 0 लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सब जगह पे m का कोई रोल नहीं है, सो वी आर जस्ट कंसीडरिंग m टू द पावर 0। ठीक है, लेकिन अब आप यहां पर देखें तो आप कहेंगे डायमेंशनली ये कैसे करेक्ट हो सकती है, ये इक्वेशन तो करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल एल टी माइनस वन है और यहाँ पर भी एल टी माइनस वन, यहाँ पर भी एल टी माइनस वन, बीच में प्लस का साइन, तो आप कहेंगे ये ऐड हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस में थोड़ा सा चेंज है। डायमेंशनल एनालिसिस में कभी भी आप करते हैं तो l प्लस एल आपको 2l नहीं देगा, ये गलत है। l प्लस एल आपको 2l नहीं देगा, l प्लस एल आपको क्या देगा, l प्लस एल आपको केवल एक l देगा। ठीक है, मींस अगर हम 2 लेंथ को ऐड करते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ द लेंथ नहीं बनेगा, वो आपको क्या बनेगा, एक लेंथ प्लस लेंथ आपको लेंथ देगी। थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना पड़ेगा। सपोज दिस मार्कर इज ऑफ एल लेंथ एंड दिस मार्कर इज ऑफ एल लेंथ, तो अगर हम इन्हें कनेक्ट कर दे तो आप बिल्कुल देख रहे हैं और कह रहे हैं 2l हो गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एल्जेब्राइकली है, मैथमेटिकली है। लेकिन यहाँ डायमेंशनल में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास l लेंथ है, एक हमारे पास l लेंथ है, इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो जो भी हमें मिलेगा वो लेंथ ही तो मिलेगा ना। हाँ, वो लेंथ ही तो मिलेगा। 4 मीटर और 4 मीटर को ऐड करने पे अगर आपको 8 मीटर मिल रहा है तो मैथमेटिकली ये बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इफ वी टॉक अबाउट द डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, बेसिक क्वांटिटीज के बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम यूनिट के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ यूनिट कि अच्छा 4 मीटर मैग्नीट्यूड 8 मीटर, इस तरीके से हम बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि डायमेंशंस है। तो लेंथ और लेंथ 2 डायमेंशन जब मिलते हैं तो तीसरा डायमेंशन उनका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी क्या होगा, इट विल बी अ लेंथ। सो यहाँ पर अगर हम वही चीज देखें तो ये किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का है, ये किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का है, ये किसका डायमेंशन हुआ, वेलोसिटी का है। ठीक है, तो जैसे लेंथ प्लस लेंथ इक्वल्स टू लेंथ हो रही है, वैसे वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। सो इट विल बी एल टी माइनस वन, और यहाँ राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, इट इज एल टी माइनस वन, यानी कि ये डायमेंशनली इक्वेशन क्या हो गई, करेक्ट हो गई। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी एक दे रहा हूं तो इसको आप ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जस्ट पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh। इस इक्वेशन को डायमेंशनली आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, डायमेंशनली आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पॉज करिए वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपने इसको किया होगा तो क्या मिला होगा आपको, यहां से m से m आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, v स्क्वायर है तो v स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एल टी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू g। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ही तो है, तो एल टी माइनस टू नहीं हो जाएगा, कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या नॉर्मल एक्सेलरेशन हो तो एल टी माइनस टू। h क्या है, हाइट, एक तरीके की लेंथ है, सो इसे हम क्या ले लेते हैं, इसे हम l ले लेते हैं।
ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पावर अंदर आ जाएंगी, इट विल बी एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये आपका एलएचएस हो गया, और आरएचएस में आप देखें तो ये एल और ये एल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बी एल स्क्वायर और टी माइनस 2 वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, यही तो आया होगा आपका भी, ऐसे ही आपने भी प्रूफ किया होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ एनी फिजिकल एक्सप्रेशन बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, क्लियर क्लियर, चलो पहला आपको क्लियर हुआ। दूसरा एडवांटेज या दूसरा यूज क्या होता है, दूसरा यूज आपका ये है कि अगर आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे दी जाए तो आप उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो करते हैं, उसको ट्राई करते हैं हम लोग। सेकेंड यूज या सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट इज यूज्ड टू establish relation between फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। कैसे, देखो अगर हम मान लें, लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल है, इसका मास कितना है, m मास है, और ये पार्टिकल सर्कुलरली मूव कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलरली मूव कर रहा है। तो सर्कुलरली मूव कर रहा है तो कुछ रेडियस होगा इस पर पूरे ट्रैक का, ठीक है, मास इसका m हो गया। जब ये मूव कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, लेट्स से वेलोसिटी v हो गई, और क्योंकि इस पार्टिकल पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये मूव कर रहा है, तो लेट्स से फोर्स इस पर जो लग रहा है वो F लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। m मास का पार्टिकल है, सर्कुलरली मूव कर रहा है, r रेडियस है, v वेलोसिटी है, फोर्स F लग रहा है। तो अब हमें इन सारी क्वांटिटीज के बीच में, वी आर हैविंग अ डिस्क्रीट क्वांटिटीज, सब रैंडम है ना हमारे पास, कुछ भी नहीं पता कौन किससे कैसे रिलेटेड है। तो हमें क्या पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि फोर्स है, वेलोसिटी है, मास है और रेडियस है, कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, देखिए सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या है, आप मान लीजिए सारी चीजें डायमेंशनली आपके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया कि फोर्स आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो जो क्वांटिटी दी गई है ले लीजिए, V M R, ठीक है। अब कई बार होता है फॉर्मूले में पावर भी आ जाती है ना, जैसे कि आप अगर इसको v इक्वल्स टू यू प्लस एटी को देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम इज देयर। बट अगर आप थर्ड इक्वेशन देखें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो जाती है, तो वहां पे पावर आ जाती है। तो पावर आने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एक सेफ्टी मार्जिन ले लेते हैं। इसे हमने ले लिया v रेज टू द पावर a, m रेज टू द पावर b और r रेज टू द पावर c, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वलिटी आएगी, f इज इक्वल्स टू हमने ले लिया k, आगे क्या है, v की पावर a, m की पावर b एंड r की पावर c। ये तीन चीजें हमारे पास हो गई, ठीक है, फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। लेकिन अब हमें प्रिसाइज फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये a, b और c कंप्यूट करने होंगे ना। नोट करिए, इसको नोट करिए, ठीक है, नोट कर लिया, ओके। ए बी सी हमें कंप्यूट करना है, कैसे कंप्यूट करेंगे, चलो अब जो भी आपको दिया गया है इसमें k को आप क्या एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम दैट k इज इक्वल्स टू 1। k हमने एज्यूम कर लिया 1 है, कांस्टेंट है ना, तो k हमने 1 एज्यूम कर लिया, अभी फिलहाल हमने 1 एज्यूम कर लिया, बाद में हम इसको फाइनली k के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है, m मास है, केवल m रखेंगे, a एक्सेलरेशन है, कितना लिखते थे, lt माइनस 2 लिखते थे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m l t माइनस 2 हो गया। तो ये यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के पावर मानी और प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लेकर के आए। दिस वाज योर स्टेप नंबर 1। इसको मैं रब कर देता हूँ, इधर पे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने ये किया, रिलेशन माना। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2, ये किसका हो गया, फोर्स का हो गया, इक्वल्स टू k को हमने 1 मान लिया तो कोई इशू नहीं, ठीक है। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l t
-1, डायमेंशनल फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर कितनी, a, m है, मास है, केवल पावर लगा दीजिए b, और रेडियस, रेडियस क्या है, एक तरीके की लेंथ है, डिस्टेंस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी l टू द पावर c। ठीक, ओके ओके। अब मैं थोड़ा सा ये ऊपर का पार्ट रफ कर देता हूं ताकि मुझे लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, अब देखिए ये आपको मिल गया पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए या डायरेक्टली कर लीजिए, एक एक स्टेप क्यों हम लोग अननेसेसरी का बढ़ाएं। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करें तो m की पावर क्या है, यहां पर m की पावर कुछ भी नहीं है, इसको मैं रेड से मार्क कर दूं ताकि आपको एक्सप्लिसिटली दिखाई दे। m की पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 मान सकते हैं। l की पावर भी कुछ नहीं, तो उसे हम क्या मान सकते हैं, 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर है 1, और राइट हैंड साइड में क्या है, एक ही m है और कहीं m नहीं है, सिर्फ एक जगह m है, उसकी पावर कितनी है, m की पावर है b। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए, अभी बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता था, m टू द पावर a विल बी इक्वल टू m टू द पावर x ओनली व्हेन a विल बी इक्वल टू x। हो यहीं पे अगर हम यहाँ पे लगा दें तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, b विल बी इक्वल टू 1, तो पहली वैल्यू तो आपकी आ गई, b इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से ये समझ में आया, कंपैरिजन क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे ये जो m दिया हुआ है, ठीक है, ये जो m दिया हुआ है इसकी पावर 1, इसे कंपेयर किया है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड के m टू द पावर 1 को कंपेयर किया राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में केवल एक ही m दिया हुआ है जिसकी पावर b है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग b इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से l को कंपेयर करें तो क्या होगा, l टू द पावर 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड पे क्या है, l की पावर a है और यहाँ पे l c है। ठीक है, एक में l की पावर a है मल्टीप्लाइड l की पावर c है, तो एक्सपोनेंट्स का लॉ लगाइए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इट विल बी l a प्लस c, तो ये कितना हो गया, इट विल बी l a प्लस c। अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इट विल बी a प्लस c इज इक्वल्स टू 1। ठीक, थर्ड t माइनस 2, अभी इनको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम इधर सॉल्व कर लें। t माइनस 2, यहाँ पे t क्या है, -1 a, और कहीं पे t है नहीं, सिर्फ यहीं एक t है, तो हम क्या कर देंगे, इट विल राइट t -1 मल्टीप्लाई a, कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। यहां से अगर आप फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी a इक्वल्स टू 2, इस a इक्वल्स टू 2 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो इट विल बी 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, दिस मींस c विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास क्या आ गया, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, सब वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो फॉर्मूला ओरिजिनली था मैं रब कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक जा करके और लिख भी सकते हैं। ओरिजिनली हम लोगों ने क्या फॉर्मूला कंसीडर किया था, इक्वलिटी साइन लगाकर f इक्वल्स टू k v की पावर a n की पावर b और r की पावर c, यही तो फॉर्मूला कंसीडर किया। अब इसमें a b c की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या मिलेगा, f इज इक्वल्स टू k हालांकि हम लोगों ने 1 माना था, लेकिन अभी इसको फिर से हम वापस k ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। v वेलोसिटी, a की वैल्यू कितनी आई थी, a वाज 2, सो हमने इसको 2 लिख दिया, लेट्स राइट इट एज 2, m टू द पावर b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और लास्ट में r में क्या है, पावर c है, मतलब -1, तो इसको अगर हम और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो इट विल बी f इक्वल्स टू k v स्क्वायर m अपॉन r, ये आपका क्या बन गया, डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है, f इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर एम बाई आर, ये आपका डिजायर्ड रिलेशन हो गया, जो कि इनिशियली हमारे पास कोई रिलेशन नहीं था, हमने सिर्फ एक assumption माना था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अब हमारे पास प्रिसाइज रिलेशन निकल करके आ गया है। तो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले का जो सेकंड यूज है वो यही है कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम किन्हीं भी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलो 2 क्लियर हुए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द थर्ड एडवांटेज और थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हिच इज, राइट डाउन, यू कैन राइट इट। थर्ड यूज इज, it is used to convert one
क्वांटिटी इन वन सिस्टम, या इसको और फिल्टर करके थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और फिल्टर करके लिख देते हैं, इट इज यूज टू कन्वर्ट क्वांटिटी ना लिख के सिस्टम में बात कर लेते हैं, इट इज यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज इनटू अनदर, वन सिस्टम इनटू अनदर। कैसे, ये भी देखते हैं अभी, इनटू अनदर। ठीक है, एक मेट्रिक सिस्टम से दूसरे मेट्रिक सिस्टम में जाना, जैसे केजी है, ठीक है, आप लिखते हो ना, अगर मैं कहूं कि 1 kg लिखिए, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, 1 kg लिखा, दूसरा कोई बंदा है वो उसको क्या लिख रहा है, 1000 ग्राम्स लिख रहा है। दोनों लोग अपनी जगह क्या है, सही है, एब्सोल्युटली सही है ना, बात तो वही है, लेकिन तरीका अलग अलग है, किसी ने 1 kg लिखा, किसी ने 1000 ग्राम लिखा। तो ये क्या है, एक तरीके से मेट्रिक कन्वर्जन है ना, कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, हमें पता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम से कितने भी kg को ग्राम में और कितने भी ग्राम को kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यही चीज हम डायमेंशनली अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज अब ये जो लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा है, ये देखिए, ये कैसे लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट है। दिस मीन्स ये एक नंबर है तो इसे हम n मान लेते हैं, ये यूनिट है तो इसे हम लोग u मान लेते हैं, ठीक है। ये पहली क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, एक को कन्वर्ट करना है दूसरे में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि x हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसमें कि n और u से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, n और u से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसी एग्जांपल को ले लूं, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो आप देखिए ये एक नंबर है तो इसे हम लोगों ने n1 ले लिया, ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यूनिट है तो इसे हम लोगों ने u1 ले लिया, ये एक दूसरा नंबर है तो इसे हम लोगों ने n2 ले लिया, और ये एक दूसरी क्वांटिटी है तो इसे हम लोगों ने u2 ले लिया। ये बात समझ आए, n1 n2 और u1 u2 क्यों लिया, ये समझ आए, 1 को n1 ले लिया, kg को u1 ले लिया, 1000 को n2 ले लिया और g को u2 ले लिया, ठीक है। ऑल्दो दे आर कन्वर्टिबल बट समहाउ दे आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। 1000 के बराबर नहीं हो सकता, केजी ग्राम के बराबर नहीं, लेकिन हाँ एक रूल के तहत, एक कह सकते हैं सिस्टम के तहत, एक कन्वर्जन के तहत जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड है, उसके बेसिस पे हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर n1 नंबर है क्योंकि, तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं, n1 आपका नंबर है तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करें, जो यूनिट है वो कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी, वो जो भी यूनिट होगी उसे हम क्या कर सकते हैं, एमएलटी के टर्म में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम। तो हमने क्या किया, हमने उसे एमएलटी के टर्म में लिखा, m1। अब आप कहोगे m1 क्यों, क्योंकि यूनिट 1 की बात कर रहा है तो m1, ठीक है, m1, और इसकी पावर क्या ले लेते हैं, लेट्स टेक द पावर एज a, m1a l1b एंड m1 हो गया, l1 हो गया, t1 एज c। ये हमने क्या किया, LHS ले लिया, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम दूसरी तरफ को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, n2, और ये क्या हो जाएगा आपका, u2 क्या हो जाएगा, इट विल बी m2 पार a l2 पार b t2 पार c, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना था, क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना था, किसे कन्वर्ट करना था, n2 को कन्वर्ट करना था, ठीक है, n2 को मान लेते कन्वर्ट करना था। आप वैसे किसी को भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप n1 और n2 में से n1 को n2 में और n2 को n1 में, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर चलिए मैं यहाँ से n1 को ही n2 में कन्वर्ट करता हूँ, या n2 को n1 में, किसी भी आप कन्वर्ट करो, थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस खाली। तो कैसे होगा, n1 विल बी इक्वल टू n2 को आप वहीं रहने दीजिए, ऊपर क्या है, m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c अपॉन ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, इट विल बी m1 की पावर a l1 की पावर b और t1 की पावर c। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इसमें आप m वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, t वालों को एक साथ ले लीजिए, होमोजेनिटी के लिए जो होमोजीनियस है उन्हें एक साथ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी n1 इज इक्वल्स टू n2 m1 अपॉन, सॉरी m2 ऊपर है, m2 अपॉन m1 की पावर कितनी, a, इसी तरीके से l2 अपॉन l1 की पावर कितनी, b, और t2 अपॉन t1 की पावर c। सो यू कैन सी
दैट सेकंड सिस्टम गॉट कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट वन। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इट विल बी n2 इक्वल्स टू n1। अब क्या हो जाएगा? सिमिलरली m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ओके, सो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला के यूजेस थे कि कैसे यूज किए जाते हैं, कहां कहां यूज होते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ विद न्यूमेरिकल्स। सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड इफ इन केस if you are popping up with any sort of problem, feel free to communicate to me through comment box or by on WhatsApp. If in case if you are having any sort of problem, please do let us know. Okay, thank you so much for watching the video. Have a great time all of you. Thank you.